all the students and faculty to take advantage and add to their insights, knowledge, get direction, and make this experience a lifelong. And I'm confident that today's day will be a great day and eventful day. Thank you. Please. Thank you, Mr. Pramod, and welcome, Mr. Rajendra Chandorkar. It is my proud privilege you having with us because I have been hearing a lot about you, and in fact, it will be a pleasure for me to have you with all of us and to hear from you on this very important topic, which is going to be so relevant to the students. And I'm not going to much speak on this particular topic because everybody understands the importance of these soft skills and how to face the interviews and all that. Because apart from the domain knowledge, what is of so prime importance to the students is how to deal ultimately in the interviews, which is going to lend them into a good job and all that. Therefore, thank you so much for being with us, and I hope that the people who are participating in this today's webinar are extremely going to be benefited out of your long and rich experience and the way you are going to handle the situation. Thank you so much. God bless you all. Thank you so much. Over to Mr. Sahare. Okay. Hello. How are you? आली पीपीटी आली का? It has come? अरे यार. बा ठीक. बघतो आता. झालं तर ठीक आहे. पोरांनाही चैन नाही पडत ना. त्यांना चैन नाही पडत. त्यांना मजा येते. सौरभ कुमार आता मेन प्रेझेंटर होईल बा. काय अजूनही सौरभ कुमारच प्रेझेंटिंग आहे.
आता प्रणय शक्ति, अरे काय है यार ये मजा कर रहे हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं है सर इसमें कुछ. आई डोंट थिंक दे आर इंटरेस्टेड, दे आर मेकिंग, म्हणजे जानबूझ के कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को. अरे पण माझं प्रेझेंटेशन कुठे गेलं आता? दिसतंय? व्हेरी गुड. ओके फाईन. सर तुमचं प्रेझेंटेशन दिसत आहे आम्हाला. Okay, fine. Okay. The best thing about this is we have got a lot of problems right from 11 o'clock to 11:20. Okay. All students, please listen to me that the first picture of the PowerPoint is how to get the job you want. Is this what you want? If you want this, then you have to understand that the only person who can give you a job, someone else is presenting म्हणतो बा. तर परत तो सारी- सौरभ कुमार परत करतोय. तो मुद्दामून करतोय. सर तुमची बिलकुल. आहे आम्हाला पण हं? विजिट आम्हाला. वो जानबूझ के कर रहा सर. नाही, ठीक आहे, ओके. So this is the Reply द्यायला first, परत. if you see the first slide of the presentation, it says that how to get a job you want. That is what you are here for, right? So the first thing one has to understand is who is going to give you a job. You are going to give yourself a job. For that, you have to prepare in a certain way. That is what we will be talking. I was told by Dr. Podduke that you are all engineers, right? In third year or fourth year or second year, whatever. I would ask you the meaning of engineering. First, have you any time wondered about the meaning of engineering? What is engineering at all? Does it mean something or it is just a word? If you see the screen, you will see that there is a word called engineering. Yes? And there is a word called engineering. First is cleverness. Now, all engineers are supposed to be clever. Are you clever? Are you ingenious? Are you able to design, contrive? आप कोई चीज बना सकते हो. आपको 4 चीजें अगर दी तो आप चीज बना सकते हो उसमें से कुछ. अगर आप कुछ कर सकते हो दिए हुए चीजों में से तो आप इंजीनियर हो. ओके. ऑल इंजीनियर्स को, सारे इंजीनियर्स को नौकरी मिलती है साहब. बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग को नौकरी नहीं मिलती, बीई को नौकरी नहीं मिलती, इंजीनियर्स को नौकरी मिलती है. ये मेरा तजुर्बा कहता है. तो आपको सिर्फ बीई नहीं बनना है, आपको इंजीनियर भी बनना है. यू अंडरस्टैंड मी? देन one has to understand the power of communication in all this. Communication, you have heard about that one word gives you information about one thing. A picture gives you communication about 1000 words. And an action, what you are doing today, you are sitting in some presentation, in some webinar with all the understanding around you, that will give you understanding of about 1 lakh words, 100 and 1000 words. So please understand that each word means something and you have to present yourself in such a way that you are worthwhile. आपका सारा गुस्सा, आपका टीचर्स के प्रति गुस्सा, इंस्टीट्यूट के प्रति गुस्सा, पेरेंट्स के प्रति गुस्सा, समाज के प्रति गुस्सा, मोदी के प्रति गुस्सा, राहुल गांधी के तरफ, इट्स ऑल रबिश. उसको कोई मायने नहीं है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं जिंदगी. When you are inside the room of an interview, you are one against the world. Clear hai? Understand? So we will study how this interview process is all about and how does it go about.
फर्स्ट स्लाइड अगेन इज आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी कागज पे लिखिएगा आप. व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी आफ्टर यू पास आउट बी? अरे यार, सर मुझे दिख रही है पर नहीं सर, सबको विजिबल नहीं है. है विजिबल नहीं है? Mr. Nikhil Thakre, stop presenting it. Pramod, Nikhil Thakre ना remove करा. Remove Nikhil Thakre. Pramod. हाँ, दिसतंय का? ठीक है. हाँ नहीं आहे आता प्रेझेंट ना. आता आलं? It has come. It has come. It is visible now. अरे पण आता मला विजिबल नाही ते. ते पोरांना सांगा ना, काळ्या नका करू म्हणा एवढ्या. हॅलो. सो Let's go on. you please write down the number of zeros you want in your salary. If you want 4 lakhs, how many zeros you want? How if you want 5 lakhs, please write down that number right now on your page somewhere. You have a page. I hope you are a student, so you should carry a notebook and a pen. If you don't, please start carrying. So put down some numbers: 3 lakhs, 4 lakhs, 5 lakhs, and then remember this slide. At the end of the presentation, I will be giving you the importance of this. Okay. The first component is you. प्रोसेस में, इंटरव्यू के प्रोसेस में सबसे पहला कंपोनेंट है आप. अगर आपको आप में इंटरेस्ट नहीं है तो किसी को आप में इंटरेस्ट नहीं है. जो भी बच्चे अभी उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं, इनके लिए मैं कह रहा हूं कि इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर डूइंग और इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर, I don't think you will be very successful in your life. If you are not interested in yourself, nobody is. Please understand this. And then you is हमारे इसमें कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं हूं तो ब्रह्म है, मैं हूं तो दुनिया है. You understand? So please understand the importance of you in the process. What are your options? What can you do? Can you get a job in your own city, or will you have to go out? What sort of companies will hire you? All that options you have to find out, and then you have to understand the process, and then you have to understand how to clear the process by relevant preparations. सबसे पहला मैं वही कह रहा हूं कि आपको सही में आप मालूम है. Do you really know yourself? This is a very जिसको कहते हैं कि गूढ़ प्रश्न है कि आपको खुद मालूम है आप आपके बारे में क्या सोचते हैं. Do you think that you are a mediocre person? Do you think that you are a smart person? Do you think whatever you are, do you know what you are? How many minutes you have thought about yourself in the entire life? अभी आप 21-22 साल के होंगे सब लोग. 21-22 साल में आपने 21-22 घंटे तो भी खुद के बारे में सोचा है कि इसके बारे में सोचिए. खुद के बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते, वो सबसे इंपॉर्टेंट. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर, you are going to be in trouble throughout your life, not only in this passing out graduation or post graduation, whatever you do. What is your perception about yourself? आपको क्या लगता है कि दुनिया आपके लिए अच्छी है, बुरी है? कॉलेज आपके लिए अच्छा है, बुरा है? टीचर्स आपके लिए अच्छे बुरे, पेरेंट्स आपके लिए अच्छे बुरे, आप लोगों के लिए अच्छे बुरे क्या है? व्हाट इज योर परसेप्शन? आप निगेटिव्स है, जो पॉजिटिव्स है, जो न्यूट्रल्स है, आप कहीं लिख के रखिए प्लीज. एंड देन यू फाइंड आउट, work with somebody who is interested in you, find out how you can get rid of your problems, how you can get rid of your challenges. That is what is most important thing. Okay, search for available options. Each option, suppose you want a job in Karamchand Thapar Group, 4SS or 3SS, that paper mill near your town. Now what sort of people they absorb? You are having any idea about what sort of people they are requiring, what sort of people they are absorbing? So find out, go out, find out their process, find out how they make the paper,
what is the voltage requirement, what is the tonnage requirement, everything. As a mechanical engineer, you must know everything about the project. Don't restrict yourself to mechanical engineering only. You should understand civil, you should understand electrical, because mechanical engineering is the mother branch of engineering. So as a mechanical engineering, you have to have more understanding of engineering as a subject. And you will get some options from there, that we want a person who is BE with first class, who can speak in English, who can have communication, proper communication, who understand machines, who understand lubrication, who understands. So compare yourself with what is the requirement there. That is called job description. So you have to have some, at least 60% of the boxes you should be able to tick. And for the remaining, you have to find out a person like Professor Potduke or Professor Khan, go to them, sit with them, find out what you can do to tick the remaining boxes. जो बची हुई boxes है, जो आपकी खाली boxes है, उनके लिए आपको किसी से एडवाइस लेना पड़ेगा. मुझे मालूम है कि आज के स्टूडेंट्स को किसी का एडवाइस पसंद नहीं, क्योंकि वो सर्वज्ञ है. उनके हिसाब से माँ बाप को कुछ नहीं आता, टीचर्स को तो कुछ आता ही नहीं है. दैट इज हाउ यू फील, बट दैट इज नॉट द ट्रूथ. So find out one person in Chandrapur who can guide you. चंद्रपुर की पॉपुलेशन कितनी है? 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख. 2 लाख. 2 लाख में एक तो बंदा ऐसा होगा जो आपको गाइड कर सकता. आपके ज्ञान, आपके क्या बोलते हैं उसको, नॉलेज लेवल को कॉम्पीट करने वाला एक आध बंदा ढूंढिए, उसके पास जाइए, उससे सीखिए, और वो जो कहता है वो करिए. If he tells you to get up at 5 o'clock and start studying, please do get up at 5 o'clock. आपकी अकल लगा के आप कहां तक पहुंचे आपको मालूम है. आप किसको बोलते नहीं, लेकिन आपको मालूम है कि आपकी अकल लगा के आपने कहां किया. अगर आपका VVD में निकाल लूं तो आप BE पास होते कि नहीं, वहां से डाउट है. सो डोंट थिंक दैट वी डोंट नो. People like me speak, people like other people, they will not speak so bluntly. But all students have to understand that they have to improve, they have to adjust, they have to adapt. Okay, so the person will tell you to do something. भैया आप ये काम करिए, तो आपने वो काम करना है. Otherwise, you will find life very difficult. These are the basic requirements as to how you can get a job. So sources of are advertisement, job agencies, consultants retained, and campus placement. You are concerned with the last. The campus placement is a very unique way of getting placed or getting employed. Why? Because college takes 50% guarantee of your character and your education and your qualification. Once you get out of the college without a job, your application for job generally is not received with respect. You please understand. So don't take campus placement very lightly. It is one of the best things that is going to happen to you. And if you are getting placed, you will be very good. If you don't get placed, you will find it extremely hard. I am telling you, extremely hard to get a job outside. Because by the time you are aware that you are not getting a job, some 5 lakhs more engineer of the next batch are in the queue. तो 5.5 लाख 10 लाख लोगों से आप कॉम्पीट कर रहे हैं, जो अभी आप 5 लाख से ही करोगे कॉम्पीट. तो 50% आपका कंपटीशन खत्म हो गया. तो कैंपस प्लेसमेंट को बहुत सीरियसली लीजिएगा आप, और उसके लिए बहुत तैयारी करिए. आपको चाहिए तो मेरी ईमेल आईडी आप ले सकते हैं, मेरे से ईमेल पे बात कर, जो करना है करे. पर when the company comes to campus or when you go to some other college for campus interview, you should be prepared. You understand me? Now, what is the CV, biodata, resume? This resume is a thing which has been promoted like anything by the trainers. I have my own ideas about resume. Resume is one page, concise information about the candidate. What should it include is the name, the education, last to first, means you will start with 7th semester BE to the first, then projects, then achievements, accomplishments, personal information if needed. The person. Now, out of all this, the most important thing is your accomplishments, what you have done. 22 साल की जिंदगी में
आपके पास ऐसी कितनी चीजें हैं जिसके बारे में आप प्राउडली बात कर सकते हैं, दैट इज योर रेज्यूमे। बाकी आप कौन सा स्टाइल यूज करते हैं, कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं, दिस इज ऑल माइनर। इफ यू यूज द बेस्ट फॉर्मेट गिवन बाय बिल गेट्स टू यू and your education is C or 45% throughout, you will not get a job. So please understand, it is in your hands to improve how you look academically, how you look, what you have done in last 3 years in the college. Have you presented papers? Have you presented any debates? Have you gone and got some certifications? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सर्टिफिकेशन कौन सा लगता है आपको? ऑटोकैड वगैरह रहता है कुछ ऐसा? Yes, yes. We have got AutoCAD? AutoCAD, ANSYS. AutoCAD है, ANSYS है, CATIA है अभी आजकल. So all the certifications you should have. Now, what is the certification? What does it tell me as an interviewer? मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ ना, कोई एचआर वाला इंटरव्यू वाला लेने वाला इंजीनियर नहीं रहता जनरली। तो व्हाट डज ही सी? वो ये देखता है कि ये बंदा 3 साल कॉलेज में था तो इसने कुछ एक्स्ट्रा किया है क्या? Has he done any certification? Has he done any internship? Has he done anything extra apart from the 6 semesters or 7 semesters? अगर आप सिर्फ 7 सेमेस्टर्स कर रहे हो और आप जाके खड़े होते हो वहां पे, तो आपका चांस ऑफ सिलेक्शन इज प्रैक्टिकली डाउन टू 30-35%. इफ यू हैव अ ऑटोकैड विद सम सर्टिफिकेशन, आपको मालूम है कि ऑटोकैड कैसा यूज करना या बाकी के जो कंप्यूटर एडेड भी चीजें हैं, तो देन योर सक्सेस चांस गोज अप टू 70-75%. यू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, हाउ मच टाइम आपकी पूरी जिंदगी की हाईलाइट, ये नहीं कि गणेश उत्सव में मुझे नाटक में काम किया, वो हाईलाइट की बात नहीं कर रहा मैं। जहाँ पे 100-200 कंपटीशन वाले लोग थे और उसमें आपने कुछ अचीव किया, दैट इज व्हाट आई से हाईलाइट. क्लियर? देन सेकंड थिंग इज टाइम स्पेंट ऑन द सीवी. हर एक सीवी को मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड यूज होता है. So you have to have the CV in a very specific manner, which can be taught to you by anybody in your college. CV कसा पाहिजे, CV का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी रहेगा आपके कॉलेज में. वो right side of the CV, right side of the page, all your achievements should be there. He will just go on ticking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 into 10, 70. So 70 is a good score. Call him for an interview. That is how it is. One of the worst things in our side of India is the language used. Language in the interview and language in the CV has to be extremely correct. उसमें कोई कंसेशन नहीं है, उसमें कोई देयर इज नो लीवे. यू हैव टू हैव अ करेक्ट फॉर्म. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिफोर आई गो टू इंटरव्यू एंड ऑल, अभी तक आपको आपके जिंदगी में क्या क्या रहता है? वो कंडो रहता है, ग्रेस रहता है, एटी केटी रहती है. आपके इस स्टेज के बाद में जिंदगी में आप या तो पास है या तो फेल है. There is no grace, there is no etiquette, there is no nothing like this. Either you are pass, that is white, and you are fail, that is black. There is no gray. ग्रे कुछ नहीं रहता इसमें. तो ये पक्का ध्यान में रखिए आप. लोगों को आपके अच्छे होने में इंटरेस्ट है, लोगों को आपके एडेप्टेबल होने में इंटरेस्ट है, लोगों को आपके टेम्परामेंट में इंटरेस्ट है. क्लियर है? तो हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर दिस? नाउ व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ इंटरव्यू? Format of interview is very simple. If you take 100 as a format, so CV, you can write this down. CV has a 5% weightage. You understand me? Your CV has 5% weightage. Aptitude test has 35% weightage in engineering. 35% weightage means 5 plus 35. Plus then there is a GD, that is 30%. Out of 100, 30 is the weightage for GD. Now in engineering interviews, mostly they will not have GD. If they don't have GD, then you will have 65% weightage for the aptitude test. You please understand. And then there is an interview.
which is domain interview, that will be around 25%, and then the 5% of the last process is the HR interview. You understand this very clearly. Now, CV you can write in a very good format. The format will be given to you by your college, as far as I understand. Use that format. Then aptitude test, you have to have lot of preparations for aptitude test. How do you know how much aptitude test? RS Agarwal वगैरह कुछ नाम सुने हैं क्या आपने? Have you heard about RS Agarwal? Do you know what is conditional thinking, patterns, reasoning, language, numerical, psychological, group task, lateral thinking, out-of-box thinking, riddles, puzzles? Have you heard names of RS Agarwal? Have you heard names of Shakuntala Devi? Have you heard names of careersvalley.com? Have you heard any names, such names? Okay. So please get a book of RS Agarwal, get a book of Shakuntala Devi, and start solving the aptitude test. It's very important. Otherwise, the first aptitude test, if you are going to appear for the campus, your chances of success are very poor. And this is not my statistics. Industrial statistics for clearing of aptitude test in engineering interviews is 15%, 15. And this 15% includes IITs, NITs, and other good colleges. If you remove these colleges, the normal college like KDK or something like this, there the students' percentage of passing the aptitude test is less than 5. 100 में से 5 बच्चे बड़े मुश्किल से एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करते हैं. एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है. आप प्रैक्टिस करिए, आप एप्टीट्यूड टेस्ट पास करेंगे. प्रैक्टिस कैसे करना उसका भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. आप करेंगे तो आपका भला है. 60 aptitude tests in 1 week. When you will do and when you will get a good score of more than 80, 85, you are ready for the aptitude test. You understand me? So please understand, 60 aptitude tests in 1 week is what you have to do. Now, मैंने पहले ही बताया कि नौकरी आपको आप खुद देंगे, कोई और नहीं देगा नौकरी. तो आप ही आपको खुद को प्रिपेयर करेंगे. और प्रिपेयर करने कैसा प्रिपेयर करना है मैं आपको समझा रहा हूं. अच्छा, इसके बाद में इंटरव्यू का जो प्रोसेस रहता है वो भी सिखाऊंगा मैं आपको. लेकिन उसके पहले अगर समझो आपके पास, चलो वी विल स्टिक विद करमचंद थापर ओनली, बल्लारपुर पेपर मिल्स. नाउ if you understand that Ballarpur paper mill is arranging a campus in your college, before you appear for the interview, you should find out the constitution, culture, products, competitors, and image of the company. This you must do. If you are a manager, means MBA side students, I would ask the present share value, current value of the share, current rate of the share also you should know. ये आपको एक आइडिया देता है कि ये किस टाइप की कंपनी है, और अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो आपकी जिंदगी किस तरह से बसर होगी. यू अंडरस्टैंड मी? दिस सेंटेंस इफ यू रिमेंबर, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. द प्रोसेस ऑफ कैंपस सिलेक्शन इज पॉजिटिव एंड द प्रोसेस इज फॉर योर सिलेक्शन. इट इज नॉट फॉर योर रिजेक्शन. ये जितने भी आपके सीनियर लोगों ने आपको बताया होगा कि उसका ऐसा उसका ऐसा, दिस इज ऑल रबिश, फॉल्स है वो. आप अगर तैयारी करके जाओगे तो आपको नौकरी मिलने के बहुत अच्छे चांसेस है, क्योंकि बाकी के 90% लोग तैयारी करते नहीं है. तो आप कम से कम 10% पर रहेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी. तो तैयारी क्या करना है वही मैं सिखा रहा हूं आपको. इंटरव्यू के समय आपको बराबर आपके कॉलेज का जो ब्लेजर रहता है वो पहनो, आप स्मार्ट बन के जाओ. अभी मैं दिख रहा था क्या आपको कभी? आपने तो सर मैं इनको दिखा क्या कभी? तो मैं मेरे घर के बेडरूम में, मैं ड्राइंग रूम में बैठा हूं. इवन देन आई एम वेयरिंग अ टाई, आई एम वेयरिंग अ बिजनेस शर्ट, बिकॉज आई एम वैल्यूइंग माई प्रोफेशन. मैं अगर जर्सी पहन के बैठता था तो भी यू कुड नॉट हैव सेड एनीथिंग, बट दैट इज व्हाट
इज नॉट अलाउड बाय माई माइंड। मुझे मालूम है कि मैं अगर मेरा प्रेजेंटेशन कर रहा हूं ठीक से तो आई शुड वेयर प्रॉपर ड्रेस। एक प्रॉपर ड्रेस पर्सन इज ऑटोमेटिकली 10% अहेड ऑफ अदर्स। सेकेंडली, यू हैव टू बी बिजनेस लाइक। आप वहां पे चकल्लस करने नहीं गए हैं, आप वहां पे सही एक नौकरी पाने के लिए गए हैं, और उसका एक प्रोसीजर होता है जो आपको कभी बैठ के समझाया जाएगा। आपको जो आंसर्स देने हैं वो फुल सेंटेंस में देने हैं, मैं आऊंगा उसके ऊपर। तो अवॉइड गिविंग ओपिनियंस, ये सबसे खराब चीज होती है नए स्टूडेंट्स में। उनको अगर पूछे कि राजीव गांधी कॉलेज में सबसे अच्छी चीज क्या है, तो आप 4 चीजें बता सकते हो आपके कॉलेज के बारे में अच्छी, आपको आश्चर्य लगेगा। लेकिन if you cannot tell 4 good things about your college after you have studied there for 4 years, your chances of selection are very very poor. उनका ये मानना रहता है कि ये बंदा 4 साल में अगर 4 चीजें अच्छी नहीं ढूंढ सका तो मेरे कंपनी आके मेरे बारे में क्या अच्छा ढूंढे। तो द रूल इज फाइंड ओपिनियंस मत देना, हमारे कॉलेज में ये खराब है, एसी चलता नहीं, आपके कंपनी में सुना है कि पिछले साल हड़ताल होगी। ऑल दिस इज रबिश, यू डोंट टॉक इन दिस वे। आंसर इन a concise crisp way. What is the density of वगैरह वगैरह, तो you should understand the density is mass upon volume plus plus plus. You should talk like an engineer. You should not talk like a street smart person. आप राह चलते आदमी के समान बात नहीं करोगे इंटरव्यू, आप इंजीनियर के समान बात करो। इंजीनियर के समान बात करने का मतलब है आपको हर चीज की डेफिनेशन मालूम चाहिए, उसका स्कोप मालूम चाहिए, उसकी लिमिटेशन मालूम चाहिए, उसका एप्लीकेशन मालूम चाहिए। अगर मैं एक चीज बोलूं कि बेवल गियर्स क्या होते हैं, व्हाट आर बेवल गियर्स, यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ बेवल गियर्स, you should know the scope of the bevel gears, you should know the limitation of bevel gears, and you should know the application of bevel gears. If I am talking about lubricants, you should know the definition of lubricants, scope of lubricants, application of lubricants, and limitation of lubricants. Lubricants कहाँ पे यूज नहीं होता, कहाँ पे होता है, कितना होता है, उसकी सेंटीपॉइज क्या होता है, मिलीपॉइज क्या होता है, ये सब मालूम चाहिए आपको। एक सिंपल रूल बता रहा हूं मैं आपको, क्या मालूम चाहिए, आप इसको ध्यान में रखिए। कक्षा 7th और 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स अप टू 7th और 8th सेमेस्टर ऑफ योर इंजीनियरिंग, एनीथिंग दैट इज कवर्ड अंडर साइंस यू शुड नो इट, एज सिंपल एज दैट। हिंदी में बता रहा हूं, कक्षा 8वीं से 8वें सेमेस्टर तक आपको जिस भी चीज में साइंस कहते हैं वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो फाइंड आउट दैट, डू यू रियली नो? तो आपको कैसे करना वो भी बता रहा हूं मैं। एक आप 300, 350, 400 पेज का नोटबुक बनाइए, उसमें चैप्टर के नाम लिखिए, चैप्टर में जितने डेफिनेशन, उसका स्कोप लिखिए चैप्टर, फिर उसके बाद में उसका डेफिनेशन हो गया, स्कोप है, लिमिटेशंस क्या है वो चैप्टर्स के, और एप्लीकेशंस क्या है। तो अपार्ट फ्रॉम डेफिनेशंस एंड स्कोप बाकी सब चीजें बहुत छोटी छोटी रहती है। ऐसे आपके करीबन 150 चैप्टर्स रहेंगे 3 साल में, मेरे ख्याल से 30 चैप्टर्स, 5-6 चैप्टर्स पर सेमेस्टर रहते हैं, तो 6, 12, 12, 36 चैप्टर्स रहेंगे। 36 चैप्टर्स का अगर आपके पास डेटा है अवेलेबल, आप किसी भी इंटरव्यू में पास हो सकते हैं। तो क्यों बता रहा हूं मैं आपको, 2 मिनट में समझाऊं। आंसर बहुत कंसाइज चाहिए, आंसर ऐसा चाहिए कि जिसमें से कोई सब क्वेश्चंस नहीं निकले। अगर आप सब क्वेश्चन निकालने के लिए मेरे को अपॉर्चुनिटी देते हैं, मैं आपको डिसेक्ट करूंगा, मैं आपको फाड़ के रखूंगा। क्लियर है? तो अभी प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू जो है वो मैं समझा रहा हूं आपको, बड़ा सिंपल। एक 20 मिनट का इंटरव्यू रहेगा आपका, बरोबर? देयर विल बी अ 20 मिनट्स इंटरव्यू इफ इट इज वन ऑन वन। तो इंटरव्यू में एक साइड में आप इंप्रेशन का रखिए, एक्स एक्सिस में अगर टाइम रखते हैं तो वाई एक्सिस में इंप्रेशन बनाइए, और टाइम को 2 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट ऐसा डिवाइड कर लीजिए, 5-5 मिनट में। तो फर्स्ट 2 minutes you will be asked to describe about yourself.
ना ये चीज को हम लोग बहुत कैजुअली लेते हैं. यू विल बी सरप्राइज. अभी आप फेस टू फेस नहीं है, नहीं तो मैं शर्त लगाता हूँ ये 40 50 100 बच्चे जो बैठे हैं वहां पे, ये खुद के बारे में 2 मिनट बात नहीं कर सकते. मैं लिख के दे सकता हूँ. इफ आई आस्क यू, यू कैन नॉट टॉक अबाउट योर सेल्फ फॉर 2 मिनट्स. सो फाइंड आउट व्हाई एंड फाइंड आउट हाउ. आपको जैसी बात करनी है वैसा आपको समझना चाहिए. नहीं यार ये मेरे को ऐसे, तो बात कैसे करोगे आप? यू विल स्टार्ट विद योर एजुकेशन, यू विल स्टार्ट योर प्रोजेक्ट, यू विल स्टार्ट योर, ये सारी 5 6 चीजें ही बोलनी है आपको. एंड यू हैव टू स्टॉप फॉर अ व्हाइल कि इसको इंटरेस्ट है कि नहीं है. एंड देन दीज 2 मिनट्स डिसाइड द कोर्स ऑफ योर इंटरव्यू. आप आपके इंटरव्यू का हैंडल आपके हाथ में है, जिस हैंडल को हम लोग ये कहते हैं कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ. समझ रहे हैं आप? तो ये चीजें आपको ईमानदारी से रटनी है. यू हैव टू रिहर्स. आपको जैसे नाटक के डायलॉग रिहर्स करते वैसे रिहर्स करना है. आपको आईने के सामने खड़े रह के देखना है. ठीक है? ग्रुप इंटरव्यूज जनरली आप फेस नहीं करोगे. पैनल इंटरव्यूज में ऐसा रहता है कि 6 लोग रहेंगे, 5 लोग रहेंगे, आप अकेले रहेंगे. सो इट इज द रिवर्स ऑफ वन ऑन वन. एक बंदा आपसे सवाल पूछता है तो यू स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन लुकिंग एट दैट पर्सन एंड मूव योर गेज, मूव योर विजन. आपकी नजर आप सबके ऊपर रखो. एंड व्हेन यू फिनिश विद द आंसर, कम बैक टू द पर्सन हु हैज आस्क्ड यू द क्वेश्चन. इज इट क्लियर? दैट इज हाउ यू हैंडल द पैनल इंटरव्यूज. नाउ इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंटरव्यू? इंटरव्यू के 80% कंटेंट आपके खुद के होते हैं, जिसको मैं चैलेंज नहीं कर सकता. आपका नाम अगर कृपाराम पांडे है तो आपका नाम कृपाराम पांडे है. आपने बीई किया है तो बीई किया है. आपने मैकेनिकल भी किया है तो मैकेनिकल में किया है. आपने प्रोजेक्ट किया है तो किया है. प्रोजेक्ट का टाइटल आप जो बताओगे मैं एक्सेप्ट करूंगा. मेरा उसमें कोई से नहीं है. इन ऑल दीज मिनट्स आई एम चेकिंग यू आउट फॉर द एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन. द एक्सप्रेशन का मायने ये है कि आपको आपकी बात में इंटरेस्ट है या नहीं है. अगर आपको आपकी बात पे इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे भी नहीं है. आर यू रियली इंटरेस्टेड अबाउट व्हाट यू आर सेइंग? एंड आप सही में आपने किया है प्रोजेक्ट या नहीं है, मेरे को 1 मिनट में समझता है. क्योंकि प्रोजेक्ट अगर आपने किया है तो आपको उसका टाइटल तो भी कम से कम बताने आता है बराबर. अगर प्रोजेक्ट आपने भाड़े से खरीदा है या 6 लोगों का प्रोजेक्ट है और आपने उसमें कुछ भी नहीं की, चकल्लस की और फाइनली साइन मारी और प्रोजेक्ट, आपका कुछ नहीं काम बनेगा. तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू फॉलो द एंटायर प्रोसेस इन अ प्रॉपर वे. तो इंटरव्यू में बेसिक ये होता है कि 20 मिनट में से करीबन करीबन 15 मिनट वो आपके बारे में बात होती है. अगर आप इंटरव्यू में फेल होते हैं तो सबसे पहले आप खुद को एक कस के जूता मारेंगे, क्योंकि आप खुद के बारे में बात नहीं कर सके. 15 minutes you cannot talk about yourself when there is a price of about 4 lakhs rupees per annum. तो इससे ज्यादा मोटिवेशन कुछ नहीं होता सर. आपको आपके बारे में बात करने के लिए इससे ज्यादा मोटिवेशन क्या है? मैं आपको पूरा एक स्टेज दे रहा हूं जिसमें मैं कह रहा हूं कि भैया आप आपके बारे में बात करें. मैडम प्लीज टॉक अबाउट योरसेल्फ. एंड यू आर सेइंग समथिंग व्हिच इज नॉट अप टू स्टैंडर्ड. Then don't blame your college, don't blame your parents, don't blame your friends, don't blame Zamana, don't blame politicians, don't blame anybody. The only person to be blamed is you. आपको अभी भी टाइम है. आप खुद के बारे में तैयार करो. 15 मिनट का आपका स्क्रिप्ट बड़ा तगड़ा चाहिए. You understand me? तो आखिर में एक स्टेज ऐसी आती है जहां पे मैं डोमेन के बारे में सवाल पूछता हूं. Now, if you are a mechanical engineer, मैं मोस्टली ऐसा पूछता था, जिस चेयर पे आप बैठे हो, अभी चेयर पे बैठे आप लोग घर में कहीं पे, सोफा पे बैठे, चेयर पे बैठे, तो उस चेयर का फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन समझाओ. व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चेयर व्हेन द चेयर इज अनऑक्यूपाइड एंड व्हेन यू आर ऑक्यूपाइंग द चेयर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोर्सेस? यू अंडरस्टैंड मी? सेकेंड थिंग, मैकेनिकल इंजीनियर्स को बड़ा ये रहता है कि ड्राइंग, पर्सपेक्टिव, सामने से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, ऑल दैट थिंग. नाउ आप जिंदगी को वो पर्सपेक्टिव में देखते हैं क्या? Please think about it. Mechanical engineering is a big man, big man, because he is actually making something happen. So, and the last thing about this is
जो आखिरी के जो सवाल रहते हैं कि दे विल टर्न आउट सम गूगली क्वेश्चन, लाइक इफ सपोज they will ask is, are you really interested in working with us, or would you go for MTech? Do you really want to do MTech? Do you really want to work with us? Now, this is a tricky question. You have to be very careful when you answer this. Never answer that you want to do MTech. If you say you want to do MTech, you are out. It's as good as you're out. Because MTech का मतलब है कि देन आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करोगे तो ऐसे आधे मन से ज्वाइन करोगे. So please understand the question and what answers he wants. Interview is not about giving answers to the question. It is much more than that. Interview is talking about yourself in a cheerful and correct way. Okay. So are you really cheerful when you are talking about mechanical engineering? Are you really cheerful about when you are talking about Rajiv Gandhi College of Engineering? Are you really cheerful when you are talking about the city of Chandrapur? Are you किसी लड़की के बारे में जितने चीयरफुल वे में आप बात करते उतने चीयरफुल वे में आप इंटरव्यू में बात करते क्या? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. यू अंडरस्टैंड मी? दो लड़के लड़की के बारे में जब बात करते हैं देन देयर टोन इज वेरी डिफरेंट. जैसे लड़कियां अगर कोई गहना बनाती है तो गहने के बारे में अपने लड़की से बात करती दोस्त से, तो हर टोन इज डिफरेंट. आई वांट दैट टोन. You should be very cheerful about when you're talking about yourself, because you are the best person as far as. तो आपके समान कोई है नहीं, तो आप तो ये पता पड़ गया आपको. तो अभी हम लोग आ गए आखिरी के 5% में, जहां पे आपने पूरा क्लियर कर लिया. आपने क्या क्या क्लियर किया? सीवी क्लियर किया, एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर किया है, आपने जीडी यानी एप्टीट्यूड टेस्ट और जीडी बोले तो 80% आपने क्लियर कर लिया है. 70% क्लियर कर लिया है आपने. तो 25% इंटरव्यू का मैंने सिखाया कि ही विल decide whether you are in or out on the basis of the domain questions. He will ask you certain mechanical engineering questions, and if you clear those, you will be in or you are out. So please understand that जिस चीज को आप जिंदगी भर कोसते हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही आपको नौकरी देने वाला है. आप कितने अच्छे दिखते हो, आपका सीवी कितना अच्छा है, ये सब माइनर चीज है, पर आपका डोमेन नॉलेज आपको जॉब देगा, बाकी कुछ नहीं देगा. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. एचआर इंटरव्यू में आपको आखिर का एचआर इंटरव्यू जब होता है आपका, उसका मतलब है कि आपने 95% रेस दौड़ लिए. 100 मीटर की रेस है तो आपने 95 मीटर दौड़ लिए. आखिर के 5 मीटर में वो चेक कर रहा है कि ये बंदा सही में लेने योग्य है या नहीं है. इज ही रियली वर्थ? कैन आई रियली हायर हिम और नॉट? सो ही इज क्रॉस चेकिंग एंड रीचेकिंग, क्रॉस चेकिंग अगेन एंड अगेन. उसमें आपसे पूछेगा कि भाई हम आपको झुमरी तलिया में नौकरी देंगे तो आप करोगे क्या? आप शिफ्ट में काम करोगे क्या? आप महीने में 25 दिन टूर करोगे क्या? आप ऐसा करोगे क्या? वैसा करोगे क्या? आप साइट पे रहोगे क्या? आप लेबर मैनेजमेंट करोगे? प्लीज अंडरस्टैंड, ये सारे सवाल का जवाब यस है. यस. आपको सारे सवाल का जवाब बिंदास यस देना. यस सर, मैं जो आप बोलेंगे करूं. मैं साइट पे काम करूंगा, मैं नाइट शिफ्ट में काम करूंगा, एवरीथिंग से यस. यू अंडरस्टैंड मी? देन यू आर थ्रू. दिस इज हाउ द इंटरव्यू इज टेकन. अभी अभी क्या बचा आपके लिए? One more thing is, ये I am running through these slides. You have to be, this interview is a game of appearance. आपको सिंसियर अपियर होना है, इंटेलिजेंट अपियर होना है, टीचेबल अपियर होना है, थिंकिंग अपियर होना है. नाउ हाउ डू यू अपियर इंटेलिजेंट इफ यू आर नॉट? आप बिना सोचे बात नहीं करोगे. आपसे जैसे मैंने पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट, आप तोते के समान बात करना शुरू नहीं करोगे. You will stop for a while, count 1, 2, 3, 4, 5, and then start. Sir, this project is very interesting. I was discussing 3 or 4 options with my HOD, and HOD sir was telling me this. I found that this particular title of the project was very interesting, and we 5 people decided that we will go on. Now, this is how an intelligent person talks. So appear intelligent, appear thinking, appear, बरोबर.
एंड एंथुजियास्टिक। मैं कितना भी कुछ भी करूं, आपका एंथुजियाज्म मेरे में नहीं आएगा। तो आपको जो यूथ का जो एंथुजियाज्म है, यूफेमेरिज्म बोलते हैं जिसको, यूथ का, वो आपका पक्का है, मेरे पास नहीं है। आई एम ऑलरेडी एन ओल्ड पर्सन, सो आई कैन नॉट बी एंथुजियास्टिक। ये एक चीज और है, इंटरव्यू खत्म होने के बाद, जैसे आपके होटल हवेली में इंटरव्यू हो रहा समझो, या आपके कॉलेज में इंटरव्यू हो रहा समझो, तो एक रूम रहेगी वहां पे 20 बाय 20 या 20 बाय 40 की, जहाँ पे वो पैनल वाले लोग इंटरव्यू लेंगे। तो हमारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे वो रूम के बाहर आते हैं, वो अपनी ओरिजिनल भाषा में आती है, उसकी माँ की, मैंने देखा उसकी, ये सब चालू हो जाता है। प्लीज डोंट डू दैट। उसको तो मैंने धो डाला, उसको तो साले को कुछ समझता नहीं था, बेवकूफ था, किसने भेजा उसको, उसको इंजीनियरिंग का ई भी मालूम नहीं। दीज आर द जनरल कमेंट्स बाय द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन आवर एरिया। आप भी यही करोगे तो ये मत करना। आपको अगर कुछ उल्टी सीधी बात कहनी है, तो जो भी कोई वेन्यू है, जो भी कोई हॉल है, उससे 2 किलोमीटर दूर जाके फिर बाद में गालियां गलौज करना, वहां पे नहीं करना। यू डोंट नो द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू माइट बी ए कंपनी पर्सन। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने ये देखा है कि जो बच्चा सिलेक्ट हुआ था, उसके बकवास के वजह से वो सिलेक्ट नहीं हुआ। एंड आई वॉज टोल्ड द रीजन। The fellow who was sitting in the crowd told me, sir, this fellow was abusing the college, this fellow was abusing the university, this fellow was abusing everything. So why should we employ such a person who is not happy with anyone? So please be very careful. Don't do anything silly in the place of venue. आपके ये सारी चीजें चेक होती है, इंटेलिजेंस, परसेप्शन, मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, जजमेंट एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसके बेसिक ये ऐसे इतने छोटे समय में समझा नहीं सकता हूँ। इसके लिए एक एक स्लाइड के लिए एक एक दिन लगता है। देन सोशल टेंडेंसीज में सबसे इंपॉर्टेंट है द लास्ट वन, एबिलिटी टू वर्क विथ अदर्स एंड टेनासिटी। यानी ए अगर एबिलिटी है तो बी टेनासिटी है। अगर आप अकेले काम कर सकते हो तो इट इज गुड, बट इट इज नॉट वेरी गुड। इफ यू कैन वर्क विथ इन टैंडम विथ पीपल, देन यू आर मोर लाइकली टू बी सिलेक्टेड। ये चेक होता है। जनरोसिटी, सेल्फिशनेस इज ओके, जेलसी, एंगर नहीं होना, ये भी चेक होता है। There are 2 or 3 psychological questions they ask you and you just come out. So be very careful. Now, what are they exactly looking for? I have been talking about a lot of things. So this particular disc tells you the basic qualifications for a person who is selected and who is not. Now, if you say that this entire circle is about 360 degrees, as any mechanical engineer will say, now you will say that intelligence and qualifications of the students in an engineering college are practically same. Generally सब B plus रहते हैं intelligence wise, and qualification सबकी 7 semester रहती है. So this is cancelled out. Impact on others is very important. They will check you. Does he have some leadership qualities? Do people listen to him? All these things. And adjustment. आपका एसी चालू है, आपको 9 बजे इंटरव्यू को बुलाया और रात को 9 बजे इंटरव्यू लिया। प्लीज अंडरस्टैंड दिस हैपेंस। तो आप उतने चीयरफुल हो क्या रात को 9 बजे भी? दैट इज एडजस्टमेंट। आपके ज्ञान बांटने से वहां पे किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये सब चीजों से ज्यादा आपका मोटिवेशन लेवल और अचीवमेंट अभी तक के क्या है, दैट डिसाइड्स। So this is about more than 180 out of 360. These 2 things, motivation and achievements, these are extremely important. This is what you should always find out. This is what is very important. So your interview is not about 10 minutes, or your interview is not about 20 minutes. Your interview is about the 22 years you have spent on this planet called Earth, and that is checked in an interview. So be very careful. Find out what additional certifications you can have. Find out what additional ways to express yourself. Find out how you can write better English. Find out all these things. These things add up, and you become a person who is more attractive.
who can attract more people. You understand me? Are you dull, quick, too intelligent? Too intelligent. If you are too intelligent, your chances of final slide is this: that are you a doer or talker? That I can check when I talk to you. आप काम करने वाले हो या बकवास करने वाले हो? ये चीजें पक्की होती है. आप प्रॉब्लम सीकर हो या सॉल्यूशन सीकर हो. आपको दो प्रॉब्लम दिए तो आप प्रॉब्लम के बारे में क्या बोलते हो, सॉल्यूशन आपके दिमाग में आता है या नहीं आता है, दैट इज ऑल्सो फाउंड आउट. आपको अगर एक चीज बताई गई, इनिशिएटिव है आप में या नहीं है. सपोज आई टेल यू दैट आई हैव टू कंस्ट्रक्ट what plywood factory. I have to construct a plywood factory in Chandrapur. Now, would you say, sir, this is not my job, I am a mechanical engineer? Or you will say, sir, okay, fine, I will find out. I will have to go and find out the land, I will have to find out an architect, I will have to find out the civil engineer who will construct the shed. Now, this is called initiative. Now, are you an engineer enough? Do you pay attention to the details? Engineer को decimals में बात करना चाहिए engineer. It is never 13% or it is never 14%. It is 13.238%. That is an engineer. एंड आपने जो काम किया, शुरू किया है, वो आप उसको खत्म करते हो या बीच में से छोड़ के भागते हो. ये सारी चीजें मैं अगर आपके सामने बैठूं तो मैं 2 मिनट में आपके साथ जब बात करूंगा तो 2-2 मिनट में मेरे को ये पता पड़ता है कि आप क्या टाइप के हैं. Now we have a system of evaluating each person on the basis of all these things. You understand me? Now go back to the slide where we were talking about your expected salary. Suppose you're, now, are you with me? Sir, समझ रहा है क्या लोगों को? Hello? Yes. समझ रहा है? Yes, everybody is चलो, listening and you're quite audible. Okay, fine. Now suppose आपके सामने जो बैठे थे 2-4 लोग, उनकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन 4 लाख रुपए. अंडरस्टैंड मी? 4 लाख रुपए समझ में आता है? तो महीने को कितना हो गया? भारतीय 36 तकरीबन 30-35 हजार रुपए होगा. तो कैलकुलेशन के लिए मैं पकड़ता हूं कि आपकी सैलरी 4,80,000. ओके, 4,80,000 है. तो आप जब इंटरव्यू लेवल पे पहुंचते हो तब मैक्सिमम इंटरव्यू में आपको जो सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल का नंबर ज्यादा से ज्यादा 12 या 15 होगा. अंडरस्टैंड मी? तो हर सवाल का जवाब, समझो आप 5 लाख रुपए सैलरी आपकी पकड़ रहे हैं, 4,80,000 पकड़ रहे हैं और आपको 10 सवाल पूछे गए तो हर सवाल का जवाब 48,000 रुपए का हुआ. यू अंडरस्टैंड मी? तो उसमें सबसे पहला सवाल रहता है व्हाट इज योर नेम. और हम लोग नेम कैसे बताते हैं? अभी मैं पूछूं तो आप कैसे बताते हो? देखो, आप आपका नाम बताएंगे. क्या बताएंगे आप? कोई, अरे एक नाम बोलो यार, कुछ भी. आशुतोष देशपांडे या आशुतोष येलने या आशुतोष व्हाटएवर. नाउ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज योर नेम और आप मेरे को आधा सवाल दे रहे जवाब. यू आर स्पिटिंग योर नेम ऑन माय फेस. So is that answer equivalent of 48,000? You ask yourself this question every time you are appearing for an interview. जब बाहर आते हो, जब आप पूछो खुद से कि मैंने जो सवाल दिए वो 7वें सवाल का जवाब 48,000 के लायक था या नहीं था, 5वें सवाल का जवाब 48,000 के लायक था या नहीं था. तो आपको खुद को समझ जाएगा कि आपकी लायकी, आपकी रिजर्वेशन, आपका कितना है. यू अंडरस्टैंड मी? So value of each question is practically salary divided by number of questions. So mostly it is 10. So if you are talking about 3 lakhs, it is 30,000. If you are talking about 4 lakhs, it is about 40,000. 5 lakhs, 50,000. If you want a salary of 10 lakhs, then your each question will be worth 1 lakh rupees. You understand me? This is how the whole process of interview is. इंटरव्यू खुद के बारे में बात करने की है. आप खुद के बारे में बात करो. 80% टाइम खुद के बारे में बात करते हो.
and it is always how you answer, not what you answer. आप जवाब कैसे दे रहे हो? Are you answering in a proper way, proper language, proper diction, proper tone, proper everything should be proper about interview. The whole body language should be that you are in need of a job. आप उसके सामने पैर नहीं पसार रहे, हाथ नहीं पसार रहे, पर आपकी नीड आप दिखा रहे कि हाँ यार मेरे को ये जॉब मिला तो आई विल बी वेरी हैप्पी. Okay, I think I have covered a lot and I should rest here. Any questions you can ask? हेलो सर. आइए. मैं विनोद गोरंटीवार बोल रहा हूँ, प्रोफेसर इन द मेकॅनिकल डिपार्टमेंट. अरे बाप, तर तुम्हाला तर नोकरी मिळाली आहे. हो, नोकरी मिळाली सर, पण मुलांसाठी प्रश्न विचारतोय मी. अरे मुलांना विचारू द्या, तुम्ही नका विचारू. सर, हा प्रश्न मुलांना बरेचदा पडतो म्हणून मी तुमच्या तर्फे विचारतोय. विचार पण सर, I would still student ask you. seminar. बोला Hello. बोला. At the outset, compliments for the best ever seminar I have heard. सर, माझा प्रश्न असा आहे की इंटरव्ह्यू मध्ये आमच्याकडच्या मुलांना इंग्लिशचा मेजर प्रॉब्लेम आहे. तर आता आपण काय नाही करू शकत. नाही, तर त्यावेळेस मुलांनी जर का मराठीत उत्तर दिलं तर चालेल का? नाही चालत. त्यांनी इंग्लिश मध्येच उत्तर द्यावं. त्याने ज्या भाषेत विचारलं त्या भाषेत प्रश्न. समजा त्यांनी इंग्लिश मध्ये विचारलं तर इंग्लिश मध्ये द्यायचं, मराठीत विचारलं तर मराठीत, हिंदीत विचारलं तर हिंदीत, तमिळ मध्ये विचारलं तर तमिळ. अच्छा 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 अच्छा. पण आमच्या विद्यार्थ्यांचा मेजर प्रॉब्लेम लँग्वेजचाच आहे सर. मी तर ऐकता माझे केस पांढरे झाले सर याच्यात की 22 वर्ष जर हा मुलगा इंग्लिश मध्ये शिकतोय आणि त्याला इंग्लिश येत नाही तर तो आतापर्यंत पास कसा झाला मग? मला सागर दिवसे दिसतोय. सागर दिवसे आहे का समोर? Yes, he is present. दिस फेलो मस्ट बी लर्निंग इन इंग्लिश फॉर लास्ट 16 years. 16 years. येस येस. 16 वर्ष इंग्लिश शिकतोय. राईट. आणि यांचा प्रश्न हा नाही की यांना इंग्लिश येतं की नाही, यांना मराठी येत नाही. मी चॅलेंज करतो, यांना मराठी येत नाही, हिंदी येत नाही. त्याला म्हणा स्वतःबद्दल मराठीत बोलू दाखव मला 2 मिनिट. नाही बोलू शकणार. They can't speak out. इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लँग्वेज, इट इज क्वेश्चन ऑफ कंटेंट. राईट राईट राईट. आणि दॅट इज व्हॉट आय एम सेइंग की मेक अ स्क्रिप्ट ऑफ अबाउट युअर सेल्फ. 15 मिनिटाची स्वतःची स्क्रिप्ट बनवा आणि त्या स्क्रिप्ट वरती कॉन्सन्ट्रेट करून मग बोला. अच्छा 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 अच्छा. म्हणजे ते म्हणतात ना की मोहब्बत की कोई जुबान नाही होती, ते सगळं खरं आहे, पण नोकरी नाही मिळत ते. नोकरी. हा बरोबर. अच्छा, दुसरी गोष्ट मी तुम्ही बोलताय म्हणून बोलतो. विनोद सर, तुम्ही कॉलेजमध्ये ज्यावेळेस लेक्चर घेता त्यावेळेस तुम्ही किती वेळ इंग्लिश मध्ये बोलता? तर आम्हाला पुष्कळ हिंदीवर किंवा मराठीवर यावं लागतं. वाय डू डू दॅट? सर, दॅट इज द लिमिटेशन ऑफ आवर रियल. नाही, काही लिमिटेशन आहे. जर वरती येऊ नाही शकला तर त्यात आउट आहे. बरोबर. ते फक्त स्टुडंट. मी एक गोष्ट ह्याच्यात अंडरलाईन करू शकतो. सागर दिवसाला सांगतो की माझ्या 60-65 वर्षाच्या आयुष्यामध्ये मला एक गोष्ट समजली की कोणताही स्टुडंट कधीही खराब नसतो. ऑल स्टुडंट्स आर गुड. नो स्टुडंट वॉन्ट्स टू फेल. Wow. Yes. No student wants to become unsuccessful in life. All students are good. माझ्याकडचा एकही स्टुडंट मी आजपर्यंत कधी खराब पाहिला नाही. So we are not able to adapt or adopt accordingly. So we are not able to communicate with them. पण भाषा येत नाही याला काही अर्थच नाही. हा ज्यावेळेस समजा आता जुने खान दिसतोय मला, पठाण. आता पठाण ज्यावेळेस पैदा झाला त्यात हॉस्पिटलमध्ये पुष्टू बोलला का? अरे नर्स पण आला तर शुक्रिया मार बोलला नाही तो. ती भाषा कशी शिकला? सराउंडिंग मध्ये, एन्व्हायरमेंट मध्ये बोलून शिकला. अच्छा, मला एक सांगा की जसं आता जुने खान पठाण आहे, तो हॉस्पिटल मधून बाहेर आला, 3ऱ्या वर्षी तो तमिळ मध्ये बोलला का? नाही. तो हिंदीत बोलला असेल किंवा जास्तीत जास्त पंजाबी किंवा पश्तूत बोलला किंवा उर्दूत बोलला. सागर दिवस जसा झाला 3ऱ्या वर्षी तो तेलुगू बोलला, मराठीत बोलला.
मराठीत कसं मराठीत होतं त्याला काय त्या अमेरिकेच्या भाषेत काय त्याला ठप्पा मारून पाठवलं होतं की मराठी आहे म्हणून देर वॉज नो ठप्पा, देर वॉज नो स्टॅम्प. पण बरोबर तो त्याची भाषा शिकला. मग आता मी हे म्हणतोय की जर इंग्लिश शिकून मला 4 लाख रुपयाची नोकरी मिळणार आहे तर व्हॉट्स ऑफ लर्न इंग्लिश. आणि इंग्लिश शिकायला 150, मी पुन्हा नीट लक्षात ठेवा, 150 वाक्य मला शिकावे लागतात. 150 ओनली. अच्छा 150 वाक्य जर तुम्हाला इंग्लिश आली तर तुम्ही कंपनीला चेअरमन तर देऊ शकता. अरे अच्छा अच्छा ही 150 वाक्य तुम्हाला कोणी शिकवू शकेल, तर कोणी नसेल शिकवू शकत तर मी शिकतो. अच्छा अच्छा सर दिस इज व्हेरी गुड इन्फॉर्मेशन सर. हे सांगतो सर तुम्हाला. शिकवा ना. त्याच्यावर 45 मिनिटात कसं शिकव. एक वेगळं सेमिनार होऊ शकतो सर याच्यावर. बेसिक कसं आहे, तुम्ही एक अजून गोष्ट लक्षात ठेवा, सगळे स्टुडंट, ऑल स्टुडंट, किती स्टुडंट 57, पहिले 78 वगैरे अभी गायब हो गए. हे जे गायब झालेले आहे या लोकांना सांगू नका तुम्ही की मी तुमच्याशी काय बोललो. वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, वो तुमसे सब सीख लेंगे, उनको नौकरी मिलेगी, तुमको नहीं मिलेगी, भी बताओ. ठीक आहे. तिथे जाऊन ज्ञान बांटने का काम मत करो. बेसिक लँग्वेज तुम्हाला यायला पाहिजे. तुम्ही मराठीत लिहिता इंजिनिअरिंग पेपर, इंग्लिश मध्ये तुम्ही यू थिंक दॅट यू आर रायटिंग इन इंग्लिश, तुम्ही काय लिहिता ती गोष्ट वेगळी आहे. पण ती इंग्लिश शिकायला पाहिजे म्हणजे पाहिजे. असं जर एखादी चांगली आता या सागर दिवसा एखादी चांगली मुलगी भेटली आणि तिला फक्त इंग्लिश येत असेल, हा शिकणार नाही इंग्लिश. तर सर तसं इन्व्हायरमेंट पण पाहिजे. सगळ्यांना इन्व्हायरमेंट मिळाला तर Who creates the environment? Who creates the environment? भाऊ या सगळ्या गोष्टी सोशल सायन्स आणि सोशल इंजिनिअरिंग आणि ह्युमन रिसोर्सेस वाले बोलतात. इंजिनियर लोक बोलत नाही. इंजिनियरला हे समजतं की मला इंग्लिश शिकायचं आहे, मला 4 लाख रुपये पगार मिळेल, मी इंग्लिश शिकेन. दॅट इज हाऊ एन इंजिनियर थिंक. बाकी सगळं मोहमाया आहे, त्याला काही अर्थ नाही. आणि हे फर्स्ट इयर मध्ये ज्यावेळेस हा मुलगा ऍडमिट झाला असेल, गोविंदवार सरांना जो कोणी बोलला असेल की मला इंग्लिशचा प्रॉब्लेम आहे, तो फर्स्ट इयर मध्ये त्याने तोच प्रॉब्लेम सांगितला, सेकंड इयर मध्ये तोच सांगितला, थर्ड इयर मध्ये तोच सांगितला, फोर्थ इयर मध्ये तोच सांगितला. सो 4 वर्ष त्याचं 4 वर्षात तो शिकला काय? नाही शिकला. मग काय शिकला? तो नाही शिकला तर त्याचा थोडा बहुत खापर आपल्यावरही फुटतो. सर आम्ही आमच्या डिपार्टमेंटला बरेच प्रयोग केले याच्यावर मनचे इंग्लिश इम्प्रूव्ह व्हा म्हणून. त्याच्यातल्या काही जणांनी त्याचा बेनिफिट घेतला पण मेजॉरिटी ऑफ द स्टुडंट डिड नॉट टेक इट अवे. तुम्ही एक गोष्ट करू शकता, जो इंग्लिश मध्ये उत्तर देईल त्याला इंटरनल 100 आउट ऑफ 100 देईल. त्याला फक्त इंटरनल मार्क्स, बाकी काही समजत नाही. जो अंग्रेजी में बातेगा, जो अच्छी अंग्रेजी में बात करेगा, करेक्ट अंग्रेजी में बात करेगा, उसको मैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दूंगा इंटरनल. बाकी लोग अपना अपना देखते बैठो. काय Chat box. There are questions in chat box. हाउ टू गो फॉर निगेटिव्ह इन इंटरव्ह्यू म्हणजे काय? वैभव वाघ का ते? Yes, sir. Sir. बोला. Yes, sir. For me, being a person facing an interview, yes, from the front side, that how to handle the unexpected questions there. हाउ टू निगेटिव्ह क्वेश्चन काय असतं? व्हॉट आर निगेटिव्ह क्वेश्चन? Unexpected questions. म्हणजे काय असतं मला समजव ना बाबा. For example, I don't know some questions, don't know some part of question, there's the answer. So how to handle that situations there? अरे निगेटिव्ह सिच्युएशन म्हणजे काय? म्हणजे तुमच्या इंटरव्ह्यू मध्ये निगेटिव्ह सिच्युएशन कुठे येते? Unethical situation, kind म्हणजे of. काय अनएथिकल म्हणजे काय? हा बोला लेट हिम. Actually, some part of questions, some part of questions that are not expected for me as of for my preparation. So how to handle that? No, you forget about those questions. No, you can handle 90% questions rightly. That is more than enough. वैभव वाघ ईमेल आयडी आहे सरांकडे, तो घ्यायचा, मला प्रश्न लिहून पाठवायचा, मी उत्तर देईन. इथे असं उत्तर नाही देत आहेत. Sir, I haven't questioned the same. अरे बाबा तुला निगेटिव क्वेश्चन में क्या आप रिश्वत लेते क्या, ऐसा सवाल पूछेगा क्या कोई आपको? Okay, क्या okay. निगेटिव सवाल है ने क्या?
अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं है. त्याच्यात अनएक्सपेक्टेड सब क्वेश्चन अँड निगेटिव्ह क्वेश्चन आर टू डिफरंट थिंग. ओके, Okay, okay. negative is totally different. Unexpected is like have you मैं आता मी तुला विचारतो होतो unexpected question. Tell me the best book on mechanical engineering for an author. I don't have knowledge of foreign author by the way. म्हणजे आपण हा अनएक्सपेक्टेड प्रश्न आहे ना. Yes. मग आता ह्याचं उत्तर सांगतो मी की आज आत्ता घरी गेल्यावर 10 फॉरेन ऑथर्सच्या पुस्तकांची नावं आणि फॉरेन ऑथर्सची नावं आपल्याजवळ ठेवायची लिहून. Yes, yes. आपण जे व्हीबीडी वाचतो Yes. Yes, sir. Yes, sir. दॅट इज शिट, ऍब्सोल्यूट बुलशिट म्हणतात ना त्याला, बुलशिट ते म्हणतो. आणि ते आपल्याला तेवढीच लायकीचीच उत्तरं देतात आणि तेवढ्याच लायकीचे आपण इंजिनियर बनतो. आपण पहिले इंजिनियर बनत नाही, आपण बीज बनतो. तर प्लीज अंडरस्टँड दॅट तुमच्या मनामध्ये जे प्रश्न आहे, दिस इज वन ऑफ माय वगैरे वगैरे व्हेरी गुड क्वेश्चन, व्हेरी युजफुल सेशन, ग्रेट वन. अजून काही प्रश्न नाही येते एनीबडी? Again, how to estimate our expected salary? हा, तर तुमची सॅलरी तुम्हाला ज्या कॅम्पस प्लेसमेंट मध्ये येतो, when company comes to campus placement, they definitely indicate the salary 3.2 lakhs, 3.8 lakhs, 1.2 lakhs, whatever. The salary is respected. There is no negotiation in campus selection. Okay. Okay, yes, sir. आणि तुमची एक्सपेक्टेड काय सॅलरी वैभव? आय एम आस्किंग यू यार, प्लीज टेल मी. What is your expected salary? Actually, it will be based on kind of interview which I am pursuing right now. आता हे दिस आन्सर इज बुलशिट. तुम्हाला क्लिअर माहिती पाहिजे की मला 2,40,000 पगार पाहिजे, मला 5,20,000 पगार. वाय इट हॅज टू डिपेंड ऑन समथिंग. Okay, आम्ही sir. उलट करतो, आम्ही नेहमी पगार पहिले ठरवतो, नंतर नोकरीच्या बद्दल विचारतो. इफ यू डिसाइड दॅट आय वॉन्ट लॅक सॅलरी, तुमची प्रिपरेशन 5 lakhsच्या हिशोबाने होईल. Okay, sir. आणि 5 lakhsच्या हिशोबाने तयारी केली तर कमीत कमी 4 लाखचा तर जॉब पक्का मिळेल. Yes, sir. आणि बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग घेतं का आपल्याला, हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. So if you don't know mechanical engineering, your salary calculations, everything, it doesn't stand. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये बेसिक ज्या 5-6 गोष्टी आहेत, फोर्स डिस्ट्रीब्युशन आहे किंवा अजून काय काय असं पटापट सांगा चॅप्टरची नाव. Stress असतं, stress, there is a सर strain. स्टुडंट Stress is sustain finite element methods. ओके फाईन. स्ट्रेस आणि स्ट्रेन मधला फरक सांगा. Sir, actually, stress describes the force What is the distributed. difference? What is the difference between a strain and a stress? Strain, actually, strain describes the strain is been described through the dimension of the body, right? For example, भैया फंड से नहीं देना भैया. नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है सर, मैं पढ़ाई करके बताऊंगा. स्ट्रेन इज वन टाइम टेम्पररी, स्ट्रेस इज परमानंट. एक वायर घ्या मेटलची, ठीक आहे. वैभव वाघ मी तुमच्याशी बोलतोय. I'm listening, yes, sir. एक स्ट्रेस आणि स्ट्रेनचा एक मेटल वायर घ्या, तिला सारखी वाकवा, तर तिला सरळ करा. 2-3 वेळा वाकवाल तर ती सरळ होईल. दॅट वायर हॅज अंडरगॉन अ स्ट्रेन. Yes, sir. तिला तुम्ही खूपदा ऐसी तैसी कराल, तिची खूप वाकवाल ती शेवटी तुटेल. तर वायर हॅज ब्रोकन डाऊन अंडर अ स्ट्रेस. इतकं सिंपल आहे इंजिनिअरिंग. Yes, आपण त्याला कठीण करतो. So first you start to understand the concept in your own language. तुमचं कॉम्प्रिहेन्शन तुमच्या भाषेत राहू द्या ना. पण तुम्ही काय करताय ना, तुम्ही इंग्लिश शिकताय ना, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग शिकताय ना, काही शिकत नाही. तुम्ही नुसतं कॉलेजमध्ये येता, चकल्लस करता. तुमच्या कॉलेजमध्ये समोसे खूप चांगले मिळत असतील, ते खाता. बाकी कॉलेज कशाला येतं, तर समोसे खायला, पोरगी चांगली दिसते, कहाँ रहती है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ये सब करने के लिए आते हैं आप. ये सब करने के बाद नौकरी नहीं मिलती.
यू अंडरस्टँड मी? Yes, sir. Yes, sir. Definitely. आता मग आता याच्या पुढे फक्त मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगशी लग्न करा, 1 वर्ष तुम्हाला फर्स्ट क्लास नोकरी मिळेल. Yes, sir. Thank you so much. बाय. चला आणखी कोणी? Anybody else? Hello, sir. This is Saurabh Kumar. सर Hmm. हॅलो Listening. सर आमच्या एका विद्यार्थ्याला प्रश्न विचारला इंटरव्ह्यू मध्ये, हा. आर यू इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? हा. तर त्याला त्यामुळे- म्हणायचं Hello? फाईन, दिस इज द सायकोलॉजिकल क्वेश्चन, आय विल आन्सर. नाही, त्या मुलाला सर इंट्रोवर्ट आणि एक्सट्रोवर्ट याचं मिनिंगच माहित नव्हतं. त्यांनी काय उत्तर द्यावं सर? अशा वेळेस- इंट्रोवर्ट म्हणजे आता मी नाही, एका सर, उदाहरण देऊन सांगतो. एक मिनिट. सर नाही, माझा प्रश्न असा आहे की ज्या वेळेस त्या मुलाला त्या प्रश्नाचा अर्थच कळत नाही, अशा वेळेस त्यांनी काय सांगावं? त्याला विचारावं ना, सर प्लीज एक्सप्लेन व्हॉट यू वॉन्ट टू आस्क. तुम्ही सर्वज्ञ म्हणून तिथे इंटरव्ह्यूला जात नाही ना. यू आर अलाउड नॉट टू नो थिंग्स. Exactly. ओके. तुम्ही सर्वज्ञ म्हणून गेले तर तुम्ही त्याचा इंटरव्ह्यू घ्याल ना. They are the bosses. No, they are bosses. Interviewers are bosses. तर ते तुम्हाला माहित नसतं, तुम्ही त्यांना विचारा की सर जरा समजा के बता. ते सांगतात विचार माझ्यासारखं. इंट्रोवर्ट म्हणजे मनोज कुमार होता की नाही? मनोज कुमार त्याच्या पिक्चर मध्ये इंट्रोवर्ट असायचा. हो, तर मनोज कुमारचा असा चेहरा असा आठवतो का तुम्हाला? असं कुठलेही एक्सप्रेशन नसलेला चेहरा. इंट्रोवर्ट असायचा. त्याच्या बाजूला बॉब फुटला तरी त्याला काही फरक नाही पडायचा. तो आपल्या दुनिया में, अंदर की दुनिया में मस्त राहायचा. राईट. एक्स्ट्रोवर्ट म्हणजे राजेश खन्ना किंवा आनंद मधला राजेश खन्ना होता. ही वॉज ऍब्सोल्यूट एक्स्ट्रोवर्ट. राईट. आणि अमिताभ बच्चन वॉज टोटली इंट्रोवर्ट. अच्छा. जे आपली फिलिंग जनरली बाहेर दाखवत नाही ते इंट्रोवर्ट असतात. राईट. आपल्या गीतेमध्ये म्हटलं, सुखे दुःखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जया. तर ते गीतेला तो अर्थ असा आहे की जो स्थितप्रज्ञ असतो राईट. तो म्हणजे इंट्रोवर्ट झाला. हा. किंवा त्याला सांगितलं की तुम्हाला 2 करोडचं लॉटरीचं रिझल्ट तिकीट लागलंय, तर तो म्हणाला अच्छा ठीक आहे. त्याला जर म्हटलं की अरे बाबा तुझ्या प्रेयसीने आत्महत्या केली आहे, तर ओके फाईन, नो प्रॉब्लेम. ते असलं असेल तर तो इंट्रोवर्ट आहे. राईट. तो ऍक्च्युली इनफॅक्ट माझा प्रश्न असा होता सर की अशा टाईपचे जे प्रश्न असतात ज्याची उत्तर मुलांना माहिती नसतात किंवा जो प्रश्नच कळत नाही, त्यावेळेस मुलांनी काय करायचं हा प्रश्न होता सर माझा. तर मी तो पहिलंच सांगितलं. त्यावेळेस त्याला सांगायचं की सर कॅन यू प्लीज कम अगेन, कॅन यू प्लीज टेल मी सम मोर डिटेल्स. राईट. हा, म्हणजे हे त्याचं आन्सर असं करायला पाहिजे. हा, ठीक आहे सर. ठीक. थँक्यू सर. थँक्यू. Hello, sir. This is Saurabh Kumar. हा, Can you hear, sir? Yes. Sir, I have a question regarding a moment in the interview that if I am not knowing any little thing about the question that has been asked or the respected interviewer is looking for. So, sir, what should I do at that moment? What can you do at that moment? You can do nothing. You can smile and just wait for the best. There is no hard and fast ABC answer for this. Okay, आपने sir. समझो आपका 7वां सवाल ऐसा है कि जिसके बारे में आपको कुछ मालूम नहीं है. अभी तक 6 सवाल के आपने जवाब दे दिए. हाँ सर. तो 7वें सवाल का जवाब आपको नहीं आया समझो. हाँ सर. और 8वें 9वें 10वें का सवाल का जवाब गया. जी सर. तो दिस डजंट मैटर. अगर आपके पहले 6 सवाल में भी आपको कुछ नहीं आया और 7वें सवाल में आपको सवाल ही समझा नहीं, हाँ सर. तो फिर आपका इंटरव्यू वैसे ही खत्म हो गया. और सर अगर ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में सिर्फ थोड़ा सा पता हो और इंटरव्यूअर को कुछ ज्यादा अच्छा चाहिए, तो उस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए हमको? So this is what I know so far. Yes, sir. But I promise you that I will study more. If you can give me your email ID, I will answer it. Sure, sir. Sure. Yeah. Thank you, sir. है ना? Right. झालं का? संपले? सहारे साहेब काही आहे का प्रश्न विष्णू? अच्छा, can anybody tell me what he did not like in the presentation? Any feedback?
This is also an interview question. Good afternoon, You sir. should Can you I- should I am you sorry. should you should never answer this question. I think You Yayati Sangolkar has given one question in chat box. What if the interviewer asks about what salary do you expect? What should be our answer to such question? Sir, your company is such a renowned company. You must have salary scales for this sort of job. Whatever salary you will give me, I'll take it. Wow. Nice. Yayati, are you satisfied? Present or not? Yes, sir. Yayati, are you present? Are you Yes, satisfied sir. with the question? Yes. Yes, Thank sir. you. And there is another question, sir, in the chat box. Yes. What should be our mindset when we are going for an interview? To get the job. Yes. To get the job, no, it is a positive attitude, total As positive simple attitude. as that. No, I think because many of the students are stressed up and nervous before the तुम्ही interview. यार स्टुडंट्सच्या स्ट्रेस बीसचं काही सांगू नका. याच्यातला एकही पोरगा स्ट्रेस्ड आउट नसतो. हे सगळे संध्याकाळी एक आता काय म्हणून एखादी बाटली उघडतील तर सगळं बंद होऊन जाईल यांचं सेट. नाही, पण ते 5 मिनिट पहिलेचे जे असते त्याच्यामध्येच प्रॉब्लेम होता ना थोडासा. अरे पण त्याला काय करता येईल? मग त्याला हाऊ कॅन एक ते सन्मान सहज सुनील गावस्करला विचारला होता प्रश्न. तर सुनील गावस्कर म्हणे 32 सेंचुरी काढल्यानंतर सुद्धा ज्यावेळेस मी बॅटिंग करायला जातो तर मी नर्वस असतो. Yes. अमिताभ बच्चनला विचारलं होतं की तुम्ही इतके फिल्म्स केल्या तर तुम्हाला सर बोले अभी भी मैं जब शॉट देने जाता हूँ मैं नर्वस रहता हूँ. देखो. तो नर्वस रहना गुनाह नहीं है. नर्वस हर कोई रहता है. आदमी में नर्व नहीं रहे तो वो तो पत्थर बन गया ना. हाँ. तर तो नर्वस नर्वसनेस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हा ते नर्वस आहे पण नर्वस नाहीये वरतून. दॅट इज व्हॉट इज रिक्वायर्ड. और वो म्हणजे जो इंटरव्यू आपल्या माइंडला स्वतः समजावं लागेल आपल्याला. तुम्ही हातपाय हलवू नका. उगीच उलटे सिधे इकडे तिकडे हात लावू नका. दॅट इज द साइन ऑफ नर्वसनेस. हे बाल ऐसे करणं या उंगली इधर करणं इकडे तिकडे बोटं घालायची नाही. दॅट इज वन साइन ऑफ नर्वसनेस. हा बोला. Any other questions, queries? हेलो सर. हाँ. हेलो सर. सर मेरा नाम राकेश यादव है सर. सर. फोटो कहाँ है तुम्हारी? सर. फोटो वोटो डालो ना खुद की. हाँ सर. आप क्वेश्चन पूछ सकते हो सर? हाँ पूछो ना. सर आपने अपने सेमिनार में बोला कि कहीं आप एचआर इंटरव्यू तक चले जाते तो आपने 90% रेस पार कर ली. 95. हाँ 95. और आपने ये भी कहा कि एचआर इंटरव्यू में हर सवाल का आंसर यस देना. क्या ये जरूरी है कि मैंने हर सवाल का आंसर यस ही देना एचआर इंटरव्यू? आपको नौकरी नहीं चाहिए तो मत दो. नहीं सर. सर जरूर नहीं हो सकता ना कि वो हर एक सवाल अरे पूछे. नहीं तो मत दो ना. आप बिल्कुल उल्टे सब उल्टे जवाब दे दो आपकी नौकरी चले जाएगी. अभी भी नहीं समझा. वो आपको कंफर्म कर रहा है कि दिस फेलो हैज बीन टॉकिंग टू मी फॉर से सो मेनी आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स. अभी वो कंफर्म कर रहा है कि ये बच्चा सही है गलत है. तो आपको चेक करेगा. नौकरी करोगे हाँ जी करेंगे. शिफ्ट में करोगे करो. आप बोलेंगे नहीं हम शिफ्ट में काम नहीं करेंगे. मैंने एक्सेंचर कंपनी में 3 लड़कियों की नौकरी क्या बोलते हैं आप लोग उसको ऑफर लेटर फाड़ के फेंक दिए उसके एचआर. एक्सेंचर में उस जमाने में 2010 में 3.5 लाख रुपए तनख्वाह दे रहा था वो. और ये तीनों लड़कियों के पूरा हो गया. एचआर इंटरव्यू तक के पहुंच गए. वहां पे उन्होंने पूछा कि आप शिफ्ट में काम करोगे क्या? तो वो लड़कियां बोली नहीं हम नहीं करेंगे. तो उसने ऐसा फाड़ा वो पेपर और फेंक दिया. एचआर इंटरव्यू का मतलब मैं समझा रहा हूँ आपको. आप अगर एचआर इंटरव्यू को सब चीज यस बोलते हो ठीक है आपको नौकरी लग जाती है. समझो अपन एक्सेंचर ही कंटिन्यू करते. एक्सेंचर में आपकी नौकरी लग गई. आप बैंगलोर में गए या हैदराबाद में या पूना में गए या नोएडा में गए या हरियाणा को कौन सा गाँव है वहां पे गए. आप फिर से वो एचआर को आपके जिंदगी में फिर से कभी भी नहीं देखने वाले. यू अंडरस्टैंड मी? यस सर. So what is the fun in saying no to whatever? Say yes to everything. कॉलेज कैसा अच्छा है, मैं कैसा हूँ अच्छा है, मेरी घरवाली कैसी अच्छी है, घर वाले कैसे हैं अच्छे, चंद्रपुर के समर कैसा है बहुत ही अच्छा है. Say yes and say good about everybody.
ओके सर। आप जब इंटरव्यू को जाते हो तो आपके आसपास में कोई भी चीज खराब नहीं है तो अच्छा है। ओके सर। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। फाइन, ओके। Yes, yes. Thank you, Shri Rajendra Andorkar. It was a highly informative, very stupendous, very impressive, a highly incredible talk ever I have heard. Thanks for the delivery, the content, your voice. It was very impressive. What I mean, I'm very happy, and Thank you. most of the students have also said that. We are confirming from that. It was Okay. really nice, and now I think that this webinar is giving them, our students, a direction what they need, Yes. the right direction. We wanted right direction, and we feel that we can arrange such seminars, webinars again and again. I think most of the students may want you live in the college also. Yeah, We'll that is better. we'll be having. I know Shri Rajendra Chandrakar ji, he also takes mock interviews, so that our students will excel in the interviews for the companies which come in the college. What I feel. So we'll surely arrange such webinars, seminars in future. And thank you, Okay. students, and thank you, Shri Rajendra Chandrakar, for being with us and sharing your invaluable time with us. What I feel. Invaluable. Thank you. Thank you. Pramod, over to Pramod. प्रमोद, ज्याचं काही टेप केलंय का? रेकॉर्ड केलेलं आहे का? Recorded. It is recorded. पाठवता का आम्हाला काही? सर प्लीज आम्हाला पण शेअर करा जो लिंक. ओके, चाल. ओके, ऑल द बेस्ट. सगळ्यांना 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 लाखाच्या नोकऱ्या मिळो. खुश राहा आयुष्यात. ज्या दिवशी नोकरी मिळेल त्या दिवशी माझा चेहरा आठवा. अरे वा, या माणसाने सांगितलं होतं. मला Okay, bye.